This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Wiz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies. رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے، رمضان آ گیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، اور ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان ذیشان۔ میں ہوں میزبان راجہ کوثر سعیدی۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے آج کے اس پروگرام کی ترتیب یہ ہے کہ تلاوت کلام پاک کی سعادت مجھے حاصل ہوگی۔ اس کے بعد لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان چیئرمین نعت فورم انٹرنیشنل، نعتیہ مجلہ مدحت کے مدیر، عوام و خواص میں یکساں مقبول، عالمی شہرت یافتہ نعت خواں و نعت گو شاعر، دانشور، علمی اور ادبی شخصیت، گویا اپنی ذات میں ایک انجمن، میری مراد جناب سرور حسین نقشبندی، مدینۃ الاصفیہ لاہور سے مدینۃ الاولیاء ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ میں انہیں پروگرام رمضان ذیشان میں خوش آمدید کہنے جا رہا ہوں۔ سرور بھائی آپ تشریف لائے، بہت شکریہ، رہنمائی فرمائی۔ تھینک یو ویری مچ۔ اور ناظرین، ہمارے دوسرے مہمان 34 سے زائد کتب کے خالق، جن میں 20 آپ نے تصنیف و تالیف کی اور 14 مرتب کرنے کا اعزاز آپ کو حاصل۔ میری مراد معروف کالم نگار، صاحب طرز قلمکار، حق پرستانہ روایات کے حامل، شعبہ صحافت کی جید و مستند اور قد آور شخصیت، روزنامہ بدلتا زمانہ ملتان کے ایڈیٹوریل جناب حیدر جاوید سید ہمارے ساتھ ہوں گے، اور ہمارا عنوان ہوگا رمضان اور تحمل و برداشت۔ جناب حیدر جاوید سید صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ ناظرین، تلاوت کے بعد سرور بھائی سے نعت سنیں گے، اور اس کے بعد پھر ہمارے جو دونوں شرکا ہیں ان انشاءاللہ اس عنوان پر ان سے گفتگو ہوگی۔ تو بڑی مختصر سی آیت جس نسبت سے میرا نام ہے، اور عزیز اکمل نے کہا کہ آپ اسی کی تلاوت کیجیے گا، سو میں اس کا شرف حاصل کر رہا ہوں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا آتینا کل کوثر فصل لربک ونحر انا شانئک هو الابتر۔ اور اس کا سرور بھائی ترجمہ منظوم کہ خیر کثیر کے مالک سرور، خیر کثیر کے مالک سرور دیتے ہیں بھر بھر کے ساغر، اور دشمن سارے آپ کے ابتر، انا آتینا کل کوثر، انا آتینا کل کوثر۔ سو ناظرین، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ بےکس پناہ میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت جناب سرور حسین نقشبندی کے نامہ اعمال میں رقم ہوا جاتی ہے۔ جی سرور۔ راس ہے اس وطن کو فضانات کی، راس ہے اس وطن کو فضانات کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوا نات
نعت کی چل رہی ہے یہاں پر ہوا نعت کی، پرتوے سبز گنبد ہے پرچم میرا، پرتوے سبز گنبد ہے پرچم میرا، لہلہاتی ہے اس پر ضیا نعت کی، لہلہاتی ہے اس پر ضیا نعت کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوا نعت کی، شاہ کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، شاہ کو یہاں سے ٹھنڈی ہوا آئی تھی، اس لیے ہے دھنک جا بجا نعت کی، اس لیے ہے دھنک جا بجا نعت کی، اور اس سے رشک کرنے لگی اس پہ زیبائیاں، رشک کرنے لگی اس پہ زیبائیاں، سج گئی جس کے تن پہ قبا نعت کی، سج گئی جس کے تن پہ قبا نعت کی، اور میرے ماں باپ اس کا وسیلہ بنے، میرے ماں باپ اس کا وسیلہ بنے، اور مرشد نے دی ہے دعا نعت کی، اور مرشد نے دی ہے دعا نعت کی، اور سارے اہل سخن اس سے ہو فیض یاب، روشنی سب کو دے اے خدا نعت کی، روشنی سب کو دے اے خدا نعت کی، پھر ہوا مجھ پہ سرور نزول کرم، پھر ہوا مجھ پہ سرور نزول کرم، پھر سے کھڑکی کھلی مرحبا نعت کی، پھر سے کھڑکی کھلی مرحبا نعت کی، راس ہے اس وطن کو فضا نعت کی، چل رہی ہے یہاں پر ہوا نعت کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان بہت شکریہ، اللہ۔ ماشاء اللہ۔ قلم کی نوک سے ہوگا نہ کیسے عطر کشید، قلم کی نوک سے ہوگا نہ کیسے عطر کشید،
रकम जो मिदहत सरकार कर रहा हूँ मैं। क्या रदीफ निभाई है, माशाल्लाह माशाल्लाह। सरूर भाई सलामत रहिए। जनाब हैदर जावेद सैयद साहिब, एक शेर आपकी नज़र करने जा रहा हूँ कि हम ही को जुर्रत इजहार का सलीका है, हम ही को जुर्रत इजहार का सलीका है, सदा का कहत पड़ेगा तो हम ही बोलेंगे। आप खूब लिखते हैं, अच्छा सोचते हैं और उसका इजहार भी करते हैं। सो मैं पूछना चाहूँगा कि मुआशरे में अदम बर्दाश्त का रवैया क्यों बढ़ता जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। बहुत शुक्रिया राजा साहब। देखिए, बुनियादी बात यह है कि जब लोग अपने असल से कट जाते हैं सही, तो बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं, खूब वो फ़र्द के लिए भी और माशरे के लिए भी। दुरुस्त। सराइकी में कहते हैं कि असल तो कम असल कट दें। वाह वाह, क्या खूबसूरत जुमला है, वाह। हमारा असल बुनियादी अलमिया बुनियादी तौर पर यही है हम्म, कि हमने हर चीज़ में नकाली की, लेकिन अपनी जो कदीम समाजी रवायात थीं, जो तहजीबी रवायात थीं, सकाफ़ती रवायात थीं, माशरती, हमने उनकी पैरवी नहीं करने की कोशिश नहीं की। बिल्कुल ठीक। उसका नतीजा जो है वो एक ऐसा मतलब है कि हमने ये काम किया कि तर्जमा कर लिया लफ्जी, असल तहरीर को समझे बगैर। दुरुस्त। बस वो लिखा हुआ है गुड मॉर्निंग, तो हमने सलाम अलैकुम तर्जमा कर लिया। जिस नस्ल के लिए हमने तर्जमा किया उसको हमने यही नहीं बताया कि उसका क्या मतलब था और इसका क्या मतलब था। बल्कि शायद इसमें मुझे एक इजाज़त दें तो हमने तर्जुमा अपनी ज़रूरत और अपने मिजाज के मुताबिक कर लिया। नहीं, मेरा ख्याल ये है कि तर्जमा जो है हमने सिर्फ कारोबार के नुक्ता नज़र से हाँ किया। हाँ हाँ, बड़ा आपने बड़ा अच्छा इस्तेमाल किया। अपने बिल्कुल ठीक है। मिजाज और ज़रूरतों के मुताबिक बिल्कुल। करते तो फिर सोच समझ सही के सही, सोच समझ यानी हम प्रोफेशनल हो गए। सोच समझ के करते बिल्कुल ना। सही, बिल्कुल सही। ये रमज़ान मुबारक का महीना है। दुरुस्त। रमज़ान बजाते खुद तज़किया नफ्स की दावत है, बिलाशुबा। अब देखना यह है कि रहमतुल लिल आलमीन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है कि जो चीज़ वो अपने लिए पसंद करे वो अपने दूसरे भाई के लिए पसंद करे। बेशक ऐसे ही। यहाँ आके दो जहां ने इंसान कहा है, न मुसलमान कहा है, न शिया कहा है, न देवबंदी कहा है, न बरेलवी, न अहले हदीस, न मोमन, इंसानियत की बात हो रही है। इंसान कहा है, क्योंकि आप रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं ना। आप रहमतुल लिल मुस्लिमीन बनकर तो आए नहीं, रहमतुल लिल आलमीन बनकर आए हैं तो आलमीन को दावत देनी थी। अब जिस तरफ आपने इशारा किया, जो आपका सवाल है, मैं उसमें जवाब ये रखता हूँ कि मुसलमानों को जो शख्स भी ये दावा करता है कि हम आका के गुलाम हैं या हमें आका से बहुत मोहब्बत है, एक मामला तो इसमें यह है ना कि ये हमारा एक तरफा दावा है। हौज़े कौसर पर कबूलियत होती है इस दावे की, तो फिर तो असल बात होगी कि आका कबूल करे ना कि ये हैदर जावेद मेरा गुलाम है, राजा साहब मेरे गुलाम है, मैंने कबूल किया मेरे गुलाम है, सरवर मियाँ मेरे गुलाम है, भी मेरे नाथ खान थे। इस वक्त तो हम तीनों का दावा जो है वो एक तरफा है। क्या अच्छी सनद जो है वो हौज़े कौसर पर मिलेगी जाम के साथ। तो मुसलमानों को ये सोचना चाहिए कि जिनका आका व मौला ये कह रहा हो कि जो चीज़ तुम अपने लिए पसंद करते हो, तुम में से बेहतरीन इंसान वो है कि जो चीज़ वो अपने लिए पसंद करता है वो अपने दूसरे भाई के लिए पसंद करे। तो अगर आप अपने लिए गाली पसंद करते हैं तो बड़ी खुशी से दूसरे को दें। क्या अच्छी बात की अगर आपने। आप अपने लिए बेतदाली पसंद करते हैं तो दूसरे को भी दावत दें। ठीक है। अगर आप अपने लिए बदजौकी पसंद करते हैं तो दूसरे के लिए भी करें। लेकिन अगर आप अपने लिए शाइस्तगी चाहते हैं तो फिर आप दूसरे को भी शाइस्तगी दें और शाइस्तगी को ही माशरे में प्रवान कराएं। क्या अच्छी बात की। तब हम इस हदीस का हक अदा करने के काबिल हो। वाह वाह वाह, जज़ाकल्लाह। सरूर भाई, 11 महीने उसके बाद फिर एक ऐसा माह मुकर्रम के जिसमें तज़किए नफ्स है, बहुत सारी बुराइयों से दूर रहने की तलकीन है, शैतान को कैद कर दिया जाता है, उसके बावजूद हर वो काम हो रहा है जो शायद पिछले 11 महीनों में नहीं हुआ। तो ये जो तब्दीली है ये फिर कैसे माशरे में आगे बढ़ेगी कि क्या हमारे कौल फेल में कोई तज़ाद इतना पैदा हो गया कि वो ख़त्म नहीं हो रहा, या मिंबर पर बैठे हुए लोग जो हैं उनकी बातों में असर नहीं रहा? तो आप किस नुक्ते नज़र से देखते हैं इस चीज़ को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कौसर साहब, और मेरी खुशबख्ती है कि शाह साहब भी तशरीफ़ फरमा है, उनकी मौजूदगी में मुझे भी लब कुशाई की सआदत हासिल हो रही है। आपका सवाल बहुत बुनियादी है और हमारे मुआशरा, अगर हम
बहैसियत मजमूई अपने माशरे पर नज़र करें तो आज का जो हमारा मौजू है वो बहुत बुनियादी अहमियत का हामिल है, और उस हवाले से रमज़ान मुबारक की जो रेलेवेंस है उसके साथ वो बड़ी अहमियत की हामिल है कि अल्लाह ताला हमें इस महीने में हमारे तमाम तर, हमारे सोने जागने के मामूलात, हमारे खाने पीने के मामलात, हमारे बोलने चालने के जो मामूलात हैं, उन सब को एक फ्रेम के अंदर, एक मीटर के अंदर, एक ज़ाब्ते के अंदर, एक उसूल के अंदर और एक अखलाकियात के दायरे के अंदर लाना हमें सिखाया जा रहा है। आप अभी सवाल आपका ये था कि इसके बावजूद ऐसा क्यों है, क्या मुबल्लिगीन की जो गुफ्तगू है उसमें असर नहीं है या कोई और वजह है। हम सारी चीज़ों पर अगर गौर कर लें तो सूफिया की जो तालीमात हैं उसका निचोड़ ये है कि हम इबादात की, मामलात की, उसकी रूह को समझने की बजाय उसकी जो ज़ाहरी शक्ल है उसको तो इख्तियार कर लेते हैं, लेकिन उसकी जो रूह है उस तक पहुंचने की कोशिश नहीं करते। इबादात जो हैं, रोज़ा जो है और दीगर जितनी भी, और सुल्तानुल आरिफीन फरमाते हैं ना कि तस्बीह फिरी ते दिल ना फिर की लेना तस्बीह हथ फड़ के हो, यानी तस्बीह तो आप फेर रहे हैं, जिक्र भी हो रहा है, रोज़ा भी आपने रखा हुआ है, भूखे प्यासे भी हैं, तरावी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन इससे जो हमें सिखाया जा रहा है, इससे जो हमारी तरबियत की जा रही है, अगर हम वो नहीं ले रहे तो फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो इरशाद गिरामी है कि बेशुमार बहुत से ऐसे रोज़ादार हैं जिनको सिवाय भूखा और प्यासा रहने के कुछ हासिल नहीं होता। तो हमें ये सोचना है कि हम इस इबादत की रूह तक कैसे पहुँचें, और रोज़ा जो हमसे तकाज़ा करता है जिन जिन कैफियत का और बर्दाश्त के जिन जिन जावियों का, उनको हमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी का, अपने अमल का हिस्सा बनाकर अगले 11 महीने जो है वो गुजारने हैं। मैं आपके सवाल से पहले ना मैं सरवर भाई की बात में एक इजाफा करना चाहता हूँ। देखें, हमें पहली बात तो हमें यह समझना होगा कि रमज़ान जो है ना वो कोई ख़ास महीना नहीं है। मैं बहुत अदब के साथ ये अर्ज़ करूँ, रमज़ान असल में हमारे इम्तिहान का महीना है, उस इम्तिहान का जिसमें से हम 11 महीने गुजर कर आए हैं। रमज़ान ने हमें एक इम्तिहानी पर्चा जो है ना, सवालात का पर्चा हमें थमा दिया है कि तुमने 11 महीने में क्या किया था। अब हमें अमली तौर पर, क्योंकि इस्लाम जो है वो तत्हीर ज़ात और तत्हीर नफ्स की दावत है, तत्हीर ज़ात और तत्हीर नफ्स में हमने 11 महीने कैसे गुजारे। बुल्ले शाह ने कहा है ना कि नफ्स के घोड़े पे काठी वही डाले जो अपना आप गंवाए। ठीक है, तो रमज़ान के इम्तिहान की तैयारी वही करे जो नफ्स के घोड़े पे काठी डाल सकता हो। एक इम्तिहानी पर्चा है 30 दिन का, रोज़ाना एक नया इम्तिहान है। उन 11 महीनों को 30 दिनों में तकसीम करें तो मुश्किल से एक दिन के हिस्से में 10-10, 12-12 दिन आएंगे पूरे साल के। यानी आप साल के 10 दिनों का इम्तिहान या 12 दिनों का इम्तिहान रमज़ान के पहले रोज़े में दे रहे हैं, फिर 12 दिनों का इम्तिहान दूसरे रोज़े में दे रहे हैं। तो हमें पूरा साल ये तैयारी करना चाहिए कि जब रमज़ान का इम्तिहानी पर्चा हम बैठेंगे अपने सालाना इम्तिहान में पास या फेल होने के लिए, तो हमारे पास पूरी तैयारी क्या है। एक तो मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ भाई की बात को आगे बढ़ाते हुए। दूसरा देखें, मैं दूसरी बात मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज़ करूँ कि हम सारे इस बात का दावा करते हैं कि या रसूलुल्लाह हम आप पर कुर्बान, लेकिन हराम है कि हम उनकी बात मानते हो, बात हम मौलवी गुलाम रसूल की मानते हैं। जब हम रसूलुल्लाह की बात नहीं मानते तो नतीजा ये निकलता है कि दुनिया की सारी अक़वाम अपने त्यौहारों के मौके पर चीज़ें सस्ती कर देती हैं और हम उससे पहले 2 दफ़ा कीमतें बढ़ा लेते हैं, और तीसरी नहीं 2 दफ़ा उससे पहले बढ़ाते हैं, फिर यकम रमज़ान को हम फिर बढ़ा लेते हैं और ईद पर हम फिर बढ़ा लेते हैं। यानी कि वो एक त्यौहार रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए अज़ाब बना दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बड़ा तबका तो इस इम्तिहान में फेल हो गया। अब पास होने वालों को जो ये समझें कि हमने 11 महीने तैयारी की थी और हमने इम्तिहान दे लिया था सर भाई, तो पास होने वालों को फिर ये चाहिए कि वो उनकी जगह संभालने की कोशिश करें, चाहे वो एक खांचा लगा के, चाहे वो एक कैबन लगा के उनका मुतबादल दें कि ठीक है जनाब हम आ रहे हैं मैदान में, हम ये काम करेंगे जिसकी दावत इस्लाम दे रहा है, हम ये दावत करेंगे और बिल्कुल उतना नफ़ा लेंगे जिससे हमारी घरदारी जो है ना वो बावकार अंदाज में चल सके। ये नाज़रीन, एक वक्फे का वक्त बच जाता है और वक्फे से वापसी के बाद जनाब हैदर जावेद सैयद साहब ने जो बात की, इंशाल्लाह इसे आगे बढ़ाते हैं और सरवर साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। रमज़ान आ गया है, रमज़ान
बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, बोले 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 दिल बोले शमा, कोई निशी I love you कहे, कोई मिस यू का सिग्नल बने, उस शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, अभी मम्मी का है ये दुआ, कहीं हाथ हमारे सहारा, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, बोले दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, तकरार भी यही प्यार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, तकरार भी यही प्यार भी, यही जीत भी यही हार भी, रोज शमा की हो मैं फिर रौनक बने पीछे बिल, बोली दिल की बोलियां, जायके की जुबान है शमा, जायके की जुबान है शमा। वॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ऑयल एंड शमा वनस्पति, बोले दिल की बोली। हर एक शय को साफ रखना, अंदर बाहर हर एक कोना साफ रखना, हाथों को पास ना आए कभी कोरोना। कोरोना में एहतियात का सभी बोलते हैं, मगर मुकम्मल एहतियात कोई भी नहीं करता। मुकम्मल एहतियात करे पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो सिर्फ बाहर से नहीं अंदर से भी करे डिसइंफेक्ट। घर, दफ्तर, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, किसी भी जगह फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजों को करे मुकम्मल डिसइंफेक्ट। WHO की रिकमेंडेशंस के मुताबिक तैयार किया गया और पाकिस्तान की तमाम मुस्तनद लेबोरेटरी से सनद याफ्ता पुलाया डिसइंफेक्टेंट, जो करे हर तरह के जर्म्स और वायरसेस का 99.9% खात्मा। और दे मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़। ये हुई मुकम्मल एहतियात की बात। पुलायर 1, 3, 5, 10 और 30 लीटर की पैकिंग में दस्तयाब है। ठीक है, पैसे तेरी मर्जी दे, लेकिन मेरे को वॉशरूम, टॉयलेट ते फर्श शीशे वाली कार लिश्क दा चाहिए। बीबी फिक्र ही ना करो, मैं तो इवें विज करे सा, वाशरूम इवें जगमग जगमग होसी। मासी विज मुंह नाल नहीं करना, इंदे नाल करने। विज आया दाग ते जरासीम दा सफाया, सेहत सफाई ते पाकीज़गी गिन के आया, क्यों जो सफाई निस्फ ईमान है। वल इटे मेरा ते विज दा कमाल, जनूबी पंजाब दा पहला ब्रांड, इंटरनेशनल मियार, जिंदगी खुशगवार। होवे क्यों ना, सराइकी जो किया। विज वॉश, हाउस ऑफ क्लीनिंग प्रोडक्ट्स। मिस्त्री साहब इंदा कुछ थी सकती? पट के नवा लग सी। पैसे कितने?
ਤੇ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ? 8000 2 ਦਿਹਾੜੇ। इहो नवा थी वेसी बाजी। तुसा करे सो? ए करे सी ओ भी 2 मिनट है। ठीक है ना, 5000 मैं देसा। ਸਾਡੇ ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੈਸਟ ਬਾਥਰੂਮ ਤੇ ਟਾਇਲਟ ਕਲੀਨਰ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਦਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਰਾਸੀਮ ਤੇ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ। मिस्त्री से 5000 घिन आयो। खुले पैसे हैं? विज दा मतलब शर्तिया सफाई। फखर नाल गिनो, एतमाद नाल वरतो। Whiz Wash, House of Cleaning Products. ਕਿਹੜੇ ਦਾਗ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਧੱਬੇ ਵਿਸ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟਿਕਦੇ? फर्श तो देखो चमचम चमके, टॉयलेट भी लिशकारे मारे। पहला ब्रांड साडा अपना ते दूजा माल असा नहीं घिनना। विज दा ए पैगाम है बेली, तंदुरुस्ती इनाम है बेली। नित ईमान सफाई ही वे, तंदुरुस्ती दी पौड़ी ही वे। तंदुरुस्ती हरगिज न वन जाए, विज आज ही घर घेन के वन जाए। विज कहनी तो सफाई कहनी। Whiz Wash, House of Cleaning Products. रमजान आ गया है, रमजान आ गया है, बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारा उन्वान रमज़ान तहम्मुल व बर्दाश्त। जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब, आप मुआशरे में ख़ासे मुतहरिक हैं, समाजी तौर पर भी, फ़िक्री तौर पर भी। जो हमारा ख़ानदानी निज़ाम है, मुझे जो बात महसूस होती है कि वहाँ कोई ऐसा खिला पैदा हो गया है कि हम अपनी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में, अपनी औलाद में ये तहम्मुल और बर्दाश्त जो है इसे सही रूह के साथ उनके अज़ान व क़ुलूब में सरायत नहीं कर सके या नहीं कर पा रहे। क्या आप इससे इत्तफ़ाक़ करते हैं? मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले तो हमारे खुद अपने अंदर पूरी तरह से सरायत किया जाना चाहिए। हम नई नस्ल के साथ इंटरेक्ट करने से दूर हो रहे हैं। हमारी जो नई नस्ल है वो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ी हुई है और इस जदीद टेक्नोलॉजी ने उनके अज़हान के ऊपर, उनकी फ़िक्र के ऊपर, उनकी अखलाकियात के ऊपर बहुत ज़्यादा असरात डाले हैं, मनफी असरात डाले हैं और उसके नतीजे में हम मिसमैच कर रहे हैं इस तरबियत के अमल में कि नई नस्ल की हम उनको समझाते हैं इस तरह से कि हमारे ज़माने में हम तो ये करते थे और आप लोग जो हैं वो आपको ये पता नहीं है। वक्त के साथ साथ जब चीज़ें बदलती हैं, तब्दीलियाँ आती हैं, तो उन तब्दीलियों के साथ साथ तरबियत के अमल में भी तब्दीलियाँ आनी चाहिए। अब वो तो बच्चे हैं, नौजवान हैं, अब बड़ों को मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ये समझने की ज़रूरत है कि अपने तरबियत के उस अमल को किस तरह से बेहतर बनाया जाए कि नई नस्ल को हम अपने करीब कर सकें। सबसे पहले तो हमें उनको अपने करीब करना है, हमने उनको दूर कर दिया और जब करीब नहीं कर रहे हैं तो उसके हम चाहेंगे और हम ये समझते हैं कि खुद ब खुद इनके अंदर वो सलाहियत पैदा हो जानी चाहिए जो हमारे ज़माने में हमारे अंदर पैदा हो गई थी। तो अब वक्त के तकाज़े बदल गए हैं, उसके लिए हमें अपने तरबियत के निज़ाम को भी, और इसमें असातिज़ा किराम की जो ज़िम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा है, वालिदैन की जहाँ ज़िम्मेदारी है, ख़ानदानी निज़ाम के सरबराह की, और बल्कि इसमें सरबराह के साथ साथ जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि अला कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयतिही, कि तुम में से हर कोई निगरान है, अपनी अपनी जगह पे उसकी कोई ना कोई ज़िम्मेदारी है और वो ज़िम्मेदारी के हवाले से वो जवाबदेह है। तो हमें अपनी अपनी ज़िम्मेदारी को समझना है और ख़ास तौर पे बड़ों की ये ज़िम्मेदारी है कि वो जदीद दौर के तकाज़ों को समझते हुए
नौजवान नस्ल की ज़रूरतों को और आज के दौर के तकाज़ों के मुताबिक समझते हुए उनको सबसे पहले अपने करीब करने की कोशिश करें, और उसके बाद फिर सरकार दो आलम सल्लम की सीरत से जो हमें पैगाम मिलता है वो यही है कि आपने सबसे पहले मोहब्बत फरमाई, लोगों को अपने करीब किया, और उसके बाद फिर तरबियत उनके दिलों में। जब मोहब्बत पैदा हो जाती है, हमने मोहब्बत से दूर कर दिया है, ताल्लुक़ से दूर कर दिया है और तरबियत ठोंसना चाहते हैं, तो तरबियत उस तरह से नहीं हो सकेगी। हमें पहले अपनाइयत का वो एहसास पैदा करना होगा, उनके मसाइल को समझना होगा, उनकी ज़रूरियात को और दीगर जो चीज़ें हैं वो करके समझने के बाद, करीब करने के बाद, मोहब्बत को पैदा करके फिर तरबियत के अमल को आगे बढ़ाना होगा। अच्छा जी, बात अभी मीडिया की भी हो रही थी, जदीद लवाज़मात की भी हो रही थी, तो ये जो हमारा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, इसे भी अपना एक रोल प्ले करना चाहिए इस तहम्मुल और बर्दाश्त के मामले में। राय साहब, मैं सरवर भाई की बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूँ। इमाम अली अलैहिस्सलाम के इरशाद ग्रामी है कि अपनी औलाद की तरबियत उनके ज़माने के मुताबिक करो, अपने ज़माने के मुताबिक नहीं। ठीक है, इसमें एक जो बुनियादी बात है वो हम सबको समझनी चाहिए, बिलखसूस वालिदैन को, कि हर ज़माना जो है ना वो अपने अहद में जदीद होता है। हम अपने जदीद अहद से गुजर कर आए हैं, अब नई नस्ल का जदीद अहद है। हम नई नस्ल को अपने जदीद अहद में नहीं ले जा सकते। एक तो हमें इन तकाज़ों को समझना चाहिए कि उनकी तरबियत हमें उस तरह करनी चाहिए, एक दोस्ताना माहौल रखना चाहिए। दूसरी बात यह है, आपके सवाल में पोशीदा, ये जो बड़े सगीर का माशरा ना, यहाँ साजिशी थ्योरियाँ बहुत बिकती हैं। इन साजिशी थ्योरियों का मतलब है कि यहाँ चक्कर ये है कि अगर पहले हिंदू थे तो रात को 2 बुत रख के सुबह वहाँ मंदिर तमीर कर देते थे कि भगवान विष्णु ने कहा है कि यहाँ मंदिर होगा। अब हम बेवा का प्लाट देख के मस्जिद बना लेते हैं। तो ये जो साजिशी थ्योरियाँ हैं ना, और ये जो हव से कब्जा गिरी है, जब तक इससे निजात नहीं मिलती। अच्छा कदर कलामी, हर फुटपाथ पर मस्जिद बनी हुई है। एक तो इससे निजात बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात यह है कि देखें, जहाँ तक प्रिंट मीडिया का और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, यहाँ आज सोशल मीडिया आ गया। देखिए, हर चीज़ के मुस्बत और मनफी पहलू होते हैं। ठीक है, मैं 47 बरस प्रिंट मीडिया में गुजारने के बाद ये मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूँ कि प्रिंट मीडिया के 100% मुस्बत असरात होने चाहिए, इसके मनफी भी होंगे। उसकी वजह यह है कि आपने हर शख्स के, हर तबके के मिजाज के लिए अखबार तैयार करना है। एक तबका है जो सिर्फ आपका एडिटोरियल पेज पढ़ता है, एक तबका आपका शोबिस का आधा सफ़ा देखता है, एक तबका आपका खेलों का आधा सफ़ा देखता है, एक तबका जिसने सिर्फ सुर्खी पढ़नी है, एक तबके ने सिर्फ अखबार इसलिए लगवाया हुआ कि हमसायों को पता चला कि इन्हें देकर अखबार आते। ठीक है, तो आप चीज़ का मुस्बत और मनफी इस्तेमाल कैसे करेंगे? हमें अपने बच्चों को ये नहीं कहना चाहिए कि तुम ये मत करो, हमें उनसे ये कहना चाहिए कि भाई देखो, ये 2 रास्ते हैं, ये हम आपके सामने रख देते हैं। इस रास्ते में आप अपनी तामीर ज़ात कर सकते हैं और आप अपने ख़ानदान के लिए माशरे में एक खूबसूरत और रोशन चेहरा बन सकते हैं। दूसरा रास्ता ये है कि इसमें आप हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस बनेंगे। मैं अक्सर गुफ्तगू में अर्ज़ करता हूँ, एक पिछली मुलाकात में भी आपसे मैंने अर्ज़ किया था कि मेरा ये ईमान है कि हर उम्मत अपने नबी का चेहरा है। ये मैं अपने मुताले की बुनियाद पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि हर उम्मत अपने रसूल का चेहरा होती है। ये उम्मत भी अपने रसूल का चेहरा है। अब इस उम्मत को सोचना चाहिए कि हम रहमतुल्लिल आलमीन का चेहरा मस्क कर रहे हैं, अल्लाहु अकबर, यहाँ उस चेहरे को संवार के दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। चेहरा मस्क करने से मुराद ये नहीं कि हमको हजूर वाला सफात की जात का चेहरा मस्क, उम्मत चेहरा है ना, अपने किरदार में, अपने अमल में, अपने गुफ्तार में, अपने उठने में, अपने बैठने में, लेन देन के मामलात में। तो हम इन सारे मामूलात में अगर उनका खूबसूरत चेहरा और खूबसूरत तस्वर बना के दुनिया के सामने पेश नहीं करते, बल्कि एक इंतहा पसंदाना तस्वर बना के पेश करते हैं, तो उससे फिर मसाइल पैदा होंगे। आखिरी बात इस हिस्से के आपके सवाल के मैं अर्ज करूं कि देखिए, मुश्तरका खानदानी निज़ाम जो है ये बुनियादी तौर पर बड़े सगीर की असास है। ठीक है, इसका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक हो गया, वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, यहूदियत हो, बुद्ध मत हो, जो मर्जी हो, ये बड़े सगीर की अपनी असास है। वरना आप बड़े सगीर से बाहर निकल के देखें कि बहुत सारे ममालिक में शादी से पहले या बच्चों के लिए अलग मकान तैयार कर देते हैं, या उस वक्त इतने पैसे देते हैं कि वो जाके वो कर ले। खुद अरब की अपनी सोसाइटी में कदीम, मतलब है कि अरब की तारीख को उठाकर देख लें तो वहाँ भी, जिसको हम यहाँ बड़े सगीर में मुश्तरका खानदानी निज़ाम समझते हैं, उस मानों में वहाँ भी वो मुश्तरका खानदानी निज़ाम नहीं है। वहाँ भी मतलब है कि हर जोड़ा इंडिपेंडेंट है। अगर एक 4 दीवारी के अंदर भी रह रहे हैं तो अपने अपने छोटे कमरों में रह रहे हैं, तो अपनी अपनी इंडिपेंडेंट। हमें ना एक दूसरे के मामलात में मुदाखलत छोड़नी चाहिए। मतलब माँ को बेटे के या बहू के मामले में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए,
اور ساس کو داماد کے معاملے میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے. زندگی ان کو ان کے حصے کی گزارنے دیں. ہاں آپ کج دیکھتے ہیں تو آپ بڑے ہیں, آپ کا حق ہے, لیکن اس کج کی نشاندہی اس طرح ہونی چاہیے کہ عزت نفس مجروح نہ ہو, وہ توہین کا پہلو نہ نکلے, اس کی سبکی نہ ہو, بلکہ اس کو احساس ہو کہ مطلب ہے کہ بہت اچھے طریقے سے میری آپا نے, میری خالہ نے, میری اماں نے بہت اچھے طریقے سے میری رہنمائی کی ہے. اور پھر لیکن جب ہم طنز کر کے بچوں کو سمجھاتے ہیں نا, پھر بچے ضد میں آ جاتے ہیں. مداخلت بیجا ختم کرنی ہوگی, مداخلت بیجا ختم کرنی ہوگی, برداشت کرنا ہوگا, طنزیہ رویہ جو ہے نا یہ ختم کرنا ہوگا ہمیں. بجا فرمائے. سرور بھائی, گفتگو انشاءاللہ جاری رہے گی, تو ہمارے ناظرین آپ سے ایک اور نعتیہ کلام جو ہے سننا چاہیے. دیکھے وہی رحمت کے بسیرے ہیں نبی جی, دیکھے وہی رحمت کے بسیرے ہیں نبی جی, جس دل میں تیری یاد کے ڈیرے ہیں نبی جی, جس دل سے مدینے کی میں شب دیکھ کے آیا, تب سے میری آنکھوں میں سویرے ہیں نبی جی, تب سے میری آنکھوں میں سویرے ہیں نبی جی. دوزخ میں جلیں گے جو غلامی میں نہ آئے, ان کے لیے جنت ہے جو تیرے ہیں نبی جی, ان کے لیے جنت ہے جو تیرے ہیں نبی جی. طیبہ کے میں راستے کی طرف دیکھ رہا ہوں, بھیگے ہوئے پلکوں کے بنیرے ہیں نبی جی, بھیگے ہوئے پلکوں کے بنیرے ہیں نبی جی. کیا چیز ہے سرور شہ والا کی محبت, ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے ہیں نبی جی, ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے ہیں نبی جی, ان کے لیے جنت ہے جو تیرے ہیں نبی جی, دیکھے وہی رحمت کے بسیرے ہیں نبی جی.
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सरवर भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, सलामत है। अच्छा सरवर भाई, मेरे जहन में एक सवाल ये आ रहा है कि गली में बच्चे खेल रहे हैं, ज़रा सी बात पे आपस में झगड़ पड़े, एक दूसरे का सर फाड़ दिया, हालांकि अभी वो बच्चे हैं। अच्छा, जो जवान है वो राह चलते एक दूसरे से उलझ पड़े, रक्शे वाले ने टक्कर मार दी, उसको भड़का दिया। अच्छा, इसी तरह सिलसिला आगे तक चल रहा है। हमारी सूबाई असम्बली में चले जाएं तो पता लगा कि यही रवैया है, कौमी असम्बली में जाएं तो मालूम होता है कि आपस में दस्तगिरबान हो रहे हैं। आखिर ऐसी क्या चीज़ है कि जो बचपन से लेके वहाँ तक जो है वो तसलसल के साथ चल रही है और कहीं ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही? आपके ये जो सारे सवाल का एक ही जवाब है कि हमने सरकार की सीरत से मुंह मोड़ लिया है। आपकी सीरत से इस्तिफ़ादा करने की जो अल्लाह ने हमें रोशनी अता फरमाई है, उससे हम जितना दूर होते चले जा रहे हैं, उतना ही अदम बर्दाश्त का रवैया, उतने ही हमारी अखलाकियात, हमारे किरदार, हमारे अमाल सब के सब बिगड़ते चले जा रहे हैं। और बहैसियत मजमूई हम देखें, जैसा आपने जिक्र किया कि बच्चों से लेकर, क्योंकि उस मुआशरे में जिस तरह से आप परवान चढ़ रहे हैं, आप बच्चे होकर लड़ रहे हैं, एक दूसरे से दस्तगिरबान हो रहे हैं, तो उन्होंने बड़े होना है ना। तो फिर बड़े होकर आप जिस जिस शोबे में जा रहे हैं, उसी तरह से अगर कोई गाड़ी चला रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मोटरसाइकिल चला रहा है, तो फिर वो तरबियत का एक पूरा, बल्कि बच्चों को समझाने की बजाय हम खुद उस लड़ाई में कूद पड़ते हैं, बड़े भी शामिल हो जाते हैं। जी हाँ, और उसकी वजह सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि हम अगर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें और रमज़ान मुबारक में हम ये मामूल बनाएं कि कम अज़ कम खुद हुजूर की सीरत का कम अज़ कम जो है वो इस रमज़ान मुबारक में कुरान पाक के साथ साथ सीरत का मुताला ज़रूर करेंगे। ये जो हमारे अदम बर्दाश्त के रवैये हैं और हम उसको हुजूर की सीरत के साथ मुत्तसिल करके देखें तो एक पूरा एक, बल्कि हमारे एक उस्ताद और बुज़ुर्ग ये कहा करते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे उस्ताद थे कि उनको दुनिया में जो सबसे ज़्यादा जहल में डूबी हुई कौम थी वो उनको मिली, और उन्होंने उस कौम को अपने किरदार से, अपने अमाल से, अपने अफ़ाल से, अपनी मोहब्बत से उनको गर्विदा भी बनाया। उनकी तरबियत भी, ना सिर्फ उनकी तरबियत की बल्कि वो ज़माने के लिए और क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए हिदायत और रहनुमाई का मीनार बन गए। तो हमें हुजूर की सीरत से इस्तिफ़ादा करने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ जो अदम बर्दाश्त की जो बुनियादी वजह है वो यही है कि हमने कुरान की और हुजूर की सीरत की जो तालीमात है उनको छोड़ दिया है। और हमारे यहाँ ये जो रवैया है कि इसके पास ऐसा क्यों है, हमारे अंदर जो दूसरे को बर्दाश्त करने की जो कैफियत हर हवाले से, चाहे उसके पास इज़्ज़त ज़्यादा है, शोहरत ज़्यादा है, दौलत ज़्यादा है, मर्तबा ज़्यादा है, तो कोई भी चीज़, हसद बुनियादी चीज़ है कि जो आपके अंदर अदम बर्दाश्त का रवैया पैदा करती है। और फिर हुजूर का ये फरमाना कि ये नेकियों को ऐसे कहा जाता है जैसे आग जो है वो खुश्क लकड़ी को खाती है। तो हम देखें कि किस तरह से हम अपने आमाल के भी दुश्मन हुए पड़े हैं, अपने किरदार के भी और अपने आमाल के भी, और अपनी माशरती और अखलाकी जो हमारी ज़िम्मेदारी है उससे भी किस तरह से रूगर्दानी करते हुए पूरे का पूरा मुआशरा, हमें मुआशरे को नहीं बल्कि अपनी ज़ात से तब्दीली का सफ़र जो है वो करने की ज़रूरत है। और ये बर्दाश्त हम अपने घर से, बच्चों से, अपने बड़ों से, बीवी से, अज़ा व अकारिब से, ये पूरा एक सफ़र है। और अकेले बंदे की जो ज़िंदगी है वो फ़र्द जो है वो मुआशरे बनाते हैं, और अकेला फ़र्द जो है वो मुआशरे की अकाई होता है, और अकाई की तब्दीली जो है वो मुआशरे की तब्दीली का पेश खैमा साबित होती है। तो हमें तब्दीली का सफ़र दूसरों को समझाने की बजाय अपनी ज़ात से करना चाहिए। और जब हम शुरू करेंगे तो देखें किस तरह से तब्दीली भी आती है, बर्दाश्त भी आती है, और हम किस तरह से हसद से भी दूर हो जाते हैं, दूसरे को देख के खुश होते हैं। अल्लाह की नेमत को देखकर खुशी अपने अंदर पैदा करेंगे तो उस खुशी और फ़र्द के एहसास से हम हसद से भी दूर हो जाएंगे। बर्दाश्त का रवैया जो है वो भी, अदम बर्दाश्त की जो कैफियत है वो भी दूर हो जाएगी, और एक अच्छे शहरी और अच्छे इंसान और अच्छे मुसलमान बनकर। नाज़रीन, जनाब सरवर हुसैन नक्शबंदी बहुत खूबसूरत बात कर रहे थे कि हसद अगर ख़त्म हो जाए तो बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी अखलाकी बुराइयां, बहुत सारी समाजी माशरती मामला जो हैं वो दुरुस्त हो सकते हैं। एक वक्फ़े का वक्त हुआ चाहता है, हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वक्फ़े के बाद। रमज़ान आ गया।
बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। मचा दे धूम। हो मेहमानों की आमद है, फिर आई शामत है। कुछ नया पकाओ, नया खिलाओ, खाने पे इम्प्रेशन जरा डट के जमाओ। इम्प्रेशन जमेगा और जम के जमेगा। किड्स पास्ता बनाओ और सबको खिलाओ। किड्स पास्ता अब बनाते ही जाओ। गिब्स पास्ता और गिब्स रेसिपी मिक्स से डालें अपने खानों में जान। आप टाइम दें मेहमानों को, हम बनाएं आपके खानों को। गिब्स पास्ता, गिब्स पास्ता। इसकी लज्जत ऐसी जो सबके दिल को भाए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। अपना बनाना हो, किसी को मनाना हो, दिल में बसाना हो, जायका इसका छाए, खा के मुस्कुराए, जो भी गिब्स स्विस रोल खाए इसी का हो जाए। जब दूध और अंडे में मिले स्ट्रॉबेरी, वनीला और बनाना का फ्लेवर तो बनता है मजेदार गिब्स स्विस रोल, जिसकी मिठास दिलों को मिला दे। गिब्स स्विस रोल, जो भी खाए इसी का हो जाए।
किसी के दिल में घर करना बहुत मुश्किल होता है और किसी के दिल में आप उसी वक्त घर कर सकते हैं जब आप अपने अमल से वो दिल जीत लें। और दिल आप तब जीत सकते हैं जब जीत का जज्बा हो। इसी जज्बे से सरशार हमने लगाया एक छोटा सा पौधा जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है और इसकी घनेरी छांव में आपको मिल रहा है ममता की आगोश जैसा सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह, ये तनावर दरख्त जिसे आपकी पजीराई ने सेंचा। गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग अपनी घनी छांव को फैलाते हुए एक और शाख के जेर साया आपको दे रहा है सोनी धरती हाउसिंग स्कीम, वो भी मुकम्मल रिहायशी सहूलियात के साथ। आपके दिल की धरती पर हमारा घर और सोनी धरती पर आपका घर। राबिते के लिए 0300 777 200 0300 222 402। बख्शिश का साथ लेके सामान आ गया है, रमजान आ गया है, रमजान आ गया है। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है रमज़ान, तहम्मुल और बर्दाश्त। शाह साहब, अभी सरवर भाई ने जो बातें की आप भी समात कर रहे थे। फ़ी ज़माना बहुत सारी तंजीमें तबलीग के नाम पर बड़े बड़े ग्रुप्स में तकसीम होकर ना सिर्फ वतन अजीज़ बल्कि वतन से बाहर भी जा रही हैं। यहाँ भी उनके बड़े बड़े मराकज़ हैं जहाँ तरबियत दी जा रही है, चैनल्स भी हैं, लिटरेचर शाया हो रहा है, यानी अरबों रुपया इस तबलीग पर सर्फ हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद नताइज आपके सामने हैं। हम और आप जो हैं वो फ़िक्रमंद हैं, बल्कि हर शख्स फ़िक्रमंद है। तो ये जो खुला तजाद है ये क्यों है? राय साहब, बात ये है अभी सरवर मियाँ ने बहुत अच्छी बातें की हैं। अब आपका ये जो सवाल है, देखें, जो चीज़ समझने की है ना वो ये है कि हम ये इबादत, ये तबलीग, ये दावत हम काहे के लिए करते हैं? इस्लाह माशरा के लिए करते हैं। तो क्या हमने पहले अपनी इस्लाह कर ली? बुनियादी चीज़ यही है। ठीक है, जब हमने अपनी इस्लाह ही नहीं की तो माशरे की इस्लाह कहाँ से करेंगे? क्या अच्छी बात की है। मैं तो 64 साल की इस उम्र में सरवर मियाँ ये समझ पाया हूँ कि हमारे यहाँ सब कुछ सौदेबाजी के लिए होता है। ठीक, नमाज इसलिए पढ़ी जाती है कि मैंने जन्नत देगा ना, फ़ौरन 4 रकत फ़र्ज पढ़ने के फ़ौरन बाद अल्लाह मियाँ के पास ये मुतालबा होता है, हुण मेरे माँ प्यो ने भी बख्श दे तो मैं खुद हिसाब कितने मरले का पलाट से। और हर नमाज के साथ फिर बंदा खुद ब खुद पलाट भी बढ़ाता चला जाता है, उसका रकबा शायद उसका बढ़ाता चला जाता है। जब तक मतलब है कि देखें, इसमें से इमाम अली अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ना कि मैं खुदा को इसलिए नहीं मानता कि मैं उनसे खौफ देता हूँ, मैं इसलिए मानता हूँ कि वो माने जाने के लायक है। ठीक है, तो हमें भी मतलब है कि आका दो जहां और उनके सहाबा कराम और अहले बैत की सीरत पर इस तौर अमल करना चाहिए कि वो खुदा को क्यों मानते थे। क्या खौफ से मानते थे? जन्नत के चक्कर में मानते थे या दोज़ख से खौफज़दा होकर मानते थे? नहीं, वो कहते माने जाने के लायक है तो मान रहे हैं ना। जब जो माने जाने के लायक है, अच्छा वो रब्बुल आलमीन है, उसने कहा कि जी ये 5 वक्त की नमाज पढ़ें। अब हम 5 वक्त की नमाज में सौदेबाजी करना चाहते हैं, 5 मरले का पलाट देने तो पढ़ दें। ये पहले तो ये ख्वाहिश अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी। इबादत को इबादत समझकर करना पड़ेगा कि वो लायक इबादत है। सुभान अल्लाह, उसका हुक्म है। देखें, मैं इसको हुक्म के मानों में नहीं लेता, मैं आप दोनों से माजरत के साथ, मैं इसको शुक्राने के मानों में लेता हूँ। अच्छा, ये लोग मैं सारी इबादत को मैं सारी इबादत को इस चीज का शुक्राना समझता हूँ कि मालिक तूने मुझे इंसान पैदा किया, मुझे शौहरत अता किया, मुझे में कोई कज नहीं रखा, मुझे अकल दी, मेहनत करने का हौसला दिया, मुझे
میں نے محنت کی اور میں یہاں پہنچ گیا ہوں. فبأي آلاء ربكما تكذبان. میں تو تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں. یہ نماز فجر ہے تو بھی تیرا شکریہ ہے, یہ ظہرین ہے تیرا شکریہ ہے, مغربین ہے تیرا شکریہ ہے. میں صرف تیرا شکریہ ادا کر رہا ہوں. باقی تو نے جو معاملے میرے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو نے کرنے ہیں, کیونکہ تو رحمت للعالمین ہے. مجھے اس لیے کوئی وہ پریشانی نہیں ہے. رب العالمین ہے, رب العالمین ہے, تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے. میں کسی ایس ایچ او کا پانی تو نہیں بھر رہا نا. میں رب العالمین کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. اور جو جتنا بڑا مالک ہوتا ہے اتنا بڑا عالی ظرف ہوتا ہے, ورنہ مالک ہی نہیں ہوتا. واہ واہ واہ. ٹھیک ہے, تو وہ عطا کرے گا اپنی جگہ, جو اس نے عطائیں فرمانی ہیں وہ عطائیں وہ فرمائے گا. یہ اس کا کام ہے. میرا کام تو یہ ہے کہ مثلا میں ایک مثال عرض کروں. امام زین العابدین علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ بہترین کس شخص نے جا کے پوچھا کہ اے مولا مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں کہ مجھے کوئی دوسرا کام نہ کرنا پڑے, وہ میری جزا کب وہ بن جائے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کرو کہ رات کو بستر پر جب تم لیٹو تو صرف ایک لمحے کے لیے یہ سوچنا کہ آج ایسا کون سا کام ہے مجھ سے سرزد ہوا جو میں نے کیا جس سے آقا دو جہاں ناراض ہوں گے. بس یہ ایک کام کر لو. ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں خود احتسابی کی دعوت جو اسلام بھی دیتا ہے, قرآن بھی خود احتسابی کی دعوت دیتا ہے, وہ ہم اس پر کتنا عمل کرتے ہیں خود احتسابی پر. ہمارا تو معاملہ ہی نہیں ہے نا. ہم دوسرے کی آنکھ کا شتیر ڈھونڈ لیتے ہیں, اپنی آنکھ کا بال نہیں ڈھونڈ پاتے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. پھر ہم اس بات کو بھی نہیں سوچنے پر بھی تیار نہیں ہے کہ دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں اللہ اور بندے کے ساتھ, اس کا حساب کتاب اللہ نے کرنا ہے. ہم یہاں چھوٹے چھوٹے خدا بنا کے بیٹھ گئے ہیں, اور وہ چھوٹے چھوٹے خدا جو ہیں گلی محلوں میں عدالتیں لگا کے وہ کفر کے فتوے جاری کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف. بھئی یہ خدا کا اور بندے کا معاملہ ہے. اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ میں آپ کے ساتھ کیسا ہوں معاملات میں, آپ میرے ساتھ کیسے ہیں معاملات میں. اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ آپ محبت اور بھائی چارے کو, اخوت کو, اس کو آپ پروان چڑھائیں. ٹھیک ہے. ہم اس کو تو پروان نہیں چڑھا رہے, ہم اپنی انا کے اس میں قلعے میں بند ہیں, اور دوسرے کے بارے میں ہماری ایک رائے ہے. آپ کا جو سوال تھا اس کے ضمن میں صرف یہ عرض کروں گا کہ جو لوگ تطہیر ذات اور تزکیہ نفس سے شناسا نہ ہوں, وہ اس طرح کی 4 دنیا کے چکر لگا رہے ہیں, وہ کوئی تبدیلی نہیں پیدا کر سکتے. کیا اچھا ہے, کیا اچھا ہے. جو اپنی ذات میں تبدیلی نہیں لا سکتے وہ کسی کی ذات میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. بلا وجہ مطلب کہ قبیلے کی ٹکریں ہیں یہ, وہ مارتے رہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر وقت پہ ٹکر مارنی ہے, جیسا کہ امام علی نے کہا کہ سچ وہ ہے جو وقت پر بولا جائے, تو سچ پھر یہی ہے کہ آپ اپنے معاملات میں بالکل ویسے بن جائیں جیسے رسول اللہ چاہتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. ویسے بن جائیں آپ. کیا بات. ٹھیک ہے. نماز پڑھیں شکرانے کے لیے, کھانا کھائیں تو قربانی کے جذبے سے نہیں, اثار کے جذبے سے. قربانی تو یہ ہے کہ ایک فقیر نے دستک دی ہے, آپ کے پاس 2 روٹیاں تھیں, آپ نے اس کو 1 روٹی اٹھا کے دے دی, آپ نے قربانی دے دی. اثار یہ ہے کہ آپ اس کو 1.5 روٹی دیں, آدھی روٹی اپنے پاس رکھیں. کیا بات ہے, کیا بات. ٹھیک ہے. ہمیں جب تک ہم یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہم نہیں کریں گے, اور ہم جو ہمارے دوست مطلب ہے کہ لوگوں کو لیکچر دیتے ہیں یا تبلیغ کرتے ہیں, خود وہ کتنا عمل کرتے ہیں. انہوں نے تزکیہ نفس کیا, تطہیر ذات کی, ان کی تو گفتگو سنیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان سے اچھا اور بہتر مسلمان ہی کوئی نہیں صحابہ کرام کے بعد, اور باقی سارے احمق ہیں, ان کو کسی بات کا پتہ ہی نہیں. اس رویہ کے حامل لوگ کسی معاشرے میں تبدیلی نہیں لا سکتے. معاشرے میں تبدیلی لانے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ اپنی ذات کہ سے پہلے تو اپنی ذات میں تبدیلی لائی جائے. اب آپ کے سوال کرنے سے پہلے میری سرور میاں سے یہ مطلب ہے کہ آج جانا درخواست ہے, فرمائش ہے کہ وہ ذکر مصطفیٰ ہوا, ذکر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ابھی ہو جائے. ایک منقبت جو ہے وہ جناب پاک بطور سلام اللہ علیہ کی. واہ واہ. جی سرور بھائی. جی جزاک اللہ. میں نے چند اشعار کہے تھے جی, اور میں پیش کرتا ہوں میری سعادت. بسم اللہ. قرآن کرے جن کی ثنا ام حسن ام حسین, قرآن کرے جن کی ثنا ام حسن ام حسین, قدسی کریں جن کا حیا
حسن حسین جو محبت انوار ہیں بنتے شہ ابرار ہیں جو محبت انوار ہیں بنتے شہ ابرار ہیں شہزادی ارض و سما ام حسن ام حسین شہزادی ارض و سما ام حسن ام حسین سبحان اللہ آئے گی جب خلق خدا ہوگا یہاں تب مرتبہ جب چشمائے کوثر کھلا ام حسن ام حسین اس میں مبین اکثیر ہے باندی یہاں تطہیر ہے کیا خوبصورت ہے اس میں مبین اکثیر ہے باندی یہاں تطہیر ہے تقدیر حق جن کا کہا ام حسن ام حسین تقدیر حق جن کا کہا ام حسن ام حسین ہر حرف ہے آب بقا خاک قدم خاک شفا سبحان اللہ سبحان اللہ ہر حرف ہے آب بقا خاک قدم خاک شفا رحمت مکی رحمت کشا ام حسن ام حسین پورا ہوا ہر مدعا جب واسطہ ان کا دیا جانے طلب روح دعا جانے طلب روح دعا ام حسن ام حسین شہزادی ارض و سما قدسی کریں جن کا حیا قرآن کرے جن کی ثنا ام حسن ام حسین سبحان اللہ سبحان اللہ کیا خوبصورت آپ نے دیکھ میں بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ قبول فرمائے سلامت رہیں نعمتیں عطا فرمائے انشاءاللہ شاہ جی آخری 2 یا 2.5 منٹ باقی ہیں تو میں آپ دونوں حضرات سے گزارش کروں گا کہ فرداً مکس نیوز کے ناظرین کے لیے ایک خصوصی اور جامع قسم کا کوئی جو میسج ہے وہ ذرا کنوے کیجیے گا دیکھیے راج صاحب میرا خیال ہے ہم نے ساری جو گفتگو کی اب تک سارے اس پروگرام میں وہ بذات خود ایک میسج ہے ٹھیک ہے لیکن میں پھر بار دیگر آقا دو جہاں کی وہی حدیث پیش کرنا چاہوں گا کہ تم میں سے بہترین انسان وہ ہے کہ جو چیز وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے
وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے. ٹھیک ہے. بڑی اور لوگوں کو یہ بات, آخری بات یہ کہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ امتی ہونے کا, غلام ہونے کا, اولاد ہونے کا, یہ سارے دعوے جو ہے نا یہ فی الحال یک طرفہ ہیں. حوض کوثر پہ قبول ہو جائے یہ دعوے تو پھر ساری یہ محنتیں جو ہے نا یہ کام آ گئیں. اور اگر وہاں راندہ درگاہ ہو گئے, پچھاننے سے بھی انکار ہو گیا, دھتکار دیے گئے, تو پھر ہمیں آج سوچنا چاہیے کہ ہم نے دھتکارنے کا سامان کرنا ہے یا سینے قربت کا سامان پیدا کرنا ہے. کیا خوبصورت. جی سرور بھائی. جی میں بھی یہی عرض کروں گا کہ ہمیں جو ہماری انفرادی حیثیت میں ہماری زندگی ہے اس سے تبدیلی کا آغاز کرنا چاہیے, اور تحمل, رواداری, برداشت, اور سب سے بنیادی اگر آپ ایک جملے میں میسیج کہیں تو بات کے اختلاف کو ذات کا اختلاف نہ بنائیں. سبحان اللہ. اس کو دوبارہ دہرائیے گا ذرا. بات کا اختلاف ذات کا اختلاف نہیں ہوتا, نہ اس کو کرنے والے کو ذات کا اختلاف بنانا چاہیے, اور نہ سننے والے کو اگر اس کی کسی بات سے اختلاف کیا جا رہا ہے, اس کے کسی عمل سے اختلاف کیا جا رہا ہے, تو وہ اس کی ذات کے ساتھ اختلاف نہیں ہے. اگر ہم ذاتیات کو پیچھے رکھ کر بات تک رہیں گے, عمل تک رہیں گے, اور اگر اس میں کوئی کمی ہے تو اس کو دور کریں گے, اور اگر کرنے والے کی کوئی کمی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ دور دور تک رہے گا اور ہماری ذات کے اندر نہیں جائے گا. بات کے اختلاف کو ذات کا اختلاف نہ بنائیں. کیا خوبصورت بات. واہ 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 ماشاءاللہ. جناب حیدر جاوید سید صاحب آپ کا شکریہ, آپ پروگرام میں تشریف لائے, بہت خوبصورت گفتگو کی. جناب سرور سے نقشبندی صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ لاہور سے تشریف لائے. ناظرین, پروگرام کے اختتام کے لمحات اپنے میزبان راجہ کوثر سعیدی کو اس شعر کے ساتھ اجازت دیجیے, جو آخر میں اپنی پورا کلام پڑھا کرتا ہوں, لیکن ایک صرف شعر کہ ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے, ان کی نسبت سے میری ذات بدل جاتی ہے, اور نعت کہتا ہوں تو اوقات بدل جاتی ہے. سو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک اور نئے موضوع اور نئے دوستوں کے ساتھ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, بخشش کا ساتھ لے کے سامان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے, رمضان آ گیا ہے. This program is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil, Viz Wash, Gulistan Property Marketing, SM Foods, Volca Foods International, Al Kareem Builders, Mall of Kent, and Dhareja Group of Academies.